Namaste everyone. Welcome back to Gurugram Real Estate. In today's video, we are going to discuss and compare DLF Privana West and Shobha Aranya. This is the floor plan जो मैंने खोल रखा है आप देख सकते हैं. The carpet area is around 2151 square feet. इसका size is around 3671 and it's a very good floor plan. Similarly, with DLF, we have a standard 4 BHK that is 3577. And why we are comparing them, we did a fourth poll, and you can see in the fourth poll we had four choices. The winner is Shobha Rania and DLF Privana. The percentage is around almost 50% of the votes. You can say 11 votes were there. Also, we would like to announce that we have started this comparison paid comparison articles, so you can see the analysis that we provide. In this, you can now request comparison based on the property size and the property worth. You can request the comparisons as well from us if you think that we would need a blog or a proper detailed information in written form. So this is a new product. You can check that out. Now coming to DLF Privana and West, let's discuss about the brochures. First let's come to the concept and why DLF Privana West is actually a very good product, and as well as why Shobha is actually very underrated again. The carpet area, the floor plan, each and everything. I have prepared this document as usual. You can check this out, and we will definitely discuss the full document here. This is going to turn out to be very important. And the thing is, when it comes to DLF Privana West and Shobha, it will depend on the taste of the people. It will depend on the budget. काफ़ी ज़्यादा high हो जाता है. It's almost a starting range of 7 CR, you can say 7.5, 8.5 CR. So it depends on, and at this price, people want a lot of things, and definitely they do deserve a lot of things if they are paying this kind of money. And if we see the concept, DLF Privana is, as we know, is a ecosystem of Privana that is going to be phase 6 of DLF, and it's going to be around 116 to 117 acres. With Shobha, it is in Karma Lakelands, and the area that is, it's also an ecosystem, but it is a small area of, let's say, 31 to 32 acres. That's what the size is, and we are going to discuss about the phase 1. Phase 1 आपका it's around 14.8 acres, and DLF Privana में it's around 12.5 acres plus 2 acres commercial and club है. So let's discuss the concept. ठीक है, let's check out the brochures. And by the way, you guys know that I'm providing you guys analysis the way you vote. आप भी vote कर सकते हैं. I am not selling any new launches, and there is a reason I am not selling any new launches. You can connect with me if you want to. So let's see Shobha Rania, the Karma Lakelands. आपने देखा होगा, it's a very big, you can see 270 acres, your biodiverse lakeland. But the thing about this one is, Shobha के पास जितना land है, that is around, you can say around 31 acres, and there is a chance they can increase the land as well, but that is what it is. DLF में, the thing is with DLF, it's a whole ecosystem. So आप एक जगह you are buying in an ecosystem with DLF Privana, okay, and the connectivity plus the cyber city 2 आपके commercial development पे है. So if you want to be a part of a bigger ecosystem, DLF Privana is a very good buy. But if you want to be just in nature, and if you want to be, let's say, a part of a decent enough society, I mean, it will take some time to be a community, but with the phase 1, let's see how it turns out. So you would be part of more towards a nature ecosystem. In DLF Privana, it's close to nature, it's close to leopard trail, it's close to everything, but then it's an ecosystem, it's an urban ecosystem. And if you see, ये आप देख सकते हैं, इन दोनों की websites हैं. Shobha Rania, they have given the details here. You can see the elevation, the club, the camping ground, all the amenities that are being offered to you, Island Cove.
So there are a lot of facilities also being provided, and similarly in DLF's case, you can check this out. This is DLF's website only, and experience nature's finest with every breath. Like real luxury is breathing air as fresh as this. I mean, I don't know if DLF has done the right thing to uh, put this title, क्योंकि यार एयर अच्छी होना इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड. उसको आप लग्जरी बोल के नहीं बेच सकते हो. रियल लग्जरी इज ब्रीदिंग एयर एज फ्रेश एज दिस. आई मीन, आई एम नॉट श्योर इफ इट even goes with that. So you can see this is the way it would look, and most of the details are there. This is your Aravali's and the nearby area, that is Leopard Trail. So yeah, as you can see, दोनों का it's a different thing. And I would like to say इसमें कि first of all, जितना मैंने DLF का ब्रोशर देखा है, this brochure, it states, and जो भी presentation ओरी जी ने दी थी, आप लोगों ने भी of course देखी होगी, the connectivity, what DLF is preparing, this is all good. Bullet train, मानेसर में आपका स्टेशन होगा, and elevated SPR, everything has been mentioned, and of course ये होगा, but अभी उसमें टाइम है ये सारी चीज़ें होने में. सो अगर आपको ट्रस्ट है DLF पे, DLF के इकोसिस्टम में क्या DLF क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट एज अ प्रोडक्ट. आपने देखा वेबसाइट पे सोल्ड आउट है, मे बी आपको रीसेल में यूनिट मिल जाए, मे बी आप न्यू में देख सकते हैं. ये आपका लेपर्ड ट्रेल है, एंड लेपर्ड ट्रेल यूज टू बी वेरी गुड जब ज़्यादा लोगों को पॉपुलर नहीं था. इट वॉज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन. राइट नाउ व्हाट आई हैव सीन इज़, व्हाट आई हैव हर्ड इज़, इट्स वेरी कंजस्टेड एंड काफ़ी लोग आने लग गए हैं. एंड जब काफ़ी लोग आने लगते हैं, उस प्लेस का थोड़ा सा चार्म कम हो जाता है. ठीक है. नाउ this is again what DLF has prepared for 76, 77, the way they have turned out things in a different way. This is the facade. मैं आपको शोभा का भी फसाड दिखा देता हूँ. इसकी इन सारी चीज़ों पे आएंगे हम. ये सी द फसाड डिफरेंस इफ़ यू लुक आउट द फसाड डिज़ाइन वाइज. So Shobha is actually a very premium facade. It's going to turn out way better than if both of the facades are there. But DLF की बेस्ट थिंग ये है कि DLF हमेशा जो फसाड आपको ब्रोशर पे दिखाएगा उससे बेटर टर्न आउट करके देता है. दैट्स वाई DLF ऑलवेज डिलीवर्स इन अ मच बेटर वे. सो अभी अगर हम डिज़ाइन वाइज ऑन द पेपर, फसाड लुक्स बेटर फॉर शोभा रानिया. ठीक है. सो मास्टर प्लान एंड आर्किटेक्ट, यू कैन चेक आउट दिस ब्रोशर. इसमें आपको डिटेल्स दे रखी हैं. दिस फ्लोर प्लान इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. यहाँ पे आप देख सकते हैं 63 यूनिट्स पर एकड़ लिखा है, बट मैं इस पॉइंट पे ज़रा आना चाहता हूँ. दिस इज़ दिस इज़ द मास्टर प्लान ऑफ DLF प्रिवाना. यू कैन सी 12.572 एकर्स, 6th. ये आपका जो पोर्शन है, दिस इज़ DLF प्रिवाना वेस्ट, जिसकी एंट्री 84 मीटर रोड से होगी यहाँ से. ठीक है. अब आप ये देख सकते हैं अप्रूव्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने. अभी एच शरा पूरा अपडेटेड नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्रिवाना, एंड आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग दिस इन केस ऑफ DLF, बिकॉज यू गाइस नो DLF इज़ DLF, राइट. वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है. सो यू कैन सी दिस 5th नंबर, दिस एंड दिस 4th इज़ पार्ट ऑफ DLF प्रिवाना वेस्ट ओनली. बट in my case you can see this 5th 1 acres and 4th 1 acres. So यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट में I have written 14.5 acres. So even though you can see the 6th area is 12.57 to 12.6 acres, आप ये दोनों 2 acres भी ऐड कर सकते हो, because ये I believe is would be club and this would be commercial on the main road. Now the plans are not announced properly कि क्या होगा. बट देन अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, DLF ने 12.6 एकर्स के हिसाब से 63 यूनिट्स पर एकड़ मेंशन किया है, बट अगर 2 एकर्स आप और ऐड करते हो तो इट कुड कम आउट टू 55 समथिंग. सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. एंड 80% ओपन स्पेस है, ऑफकोर्स दे हैव क्लियरली रिटन इट. एंड हमारे पास एशरा में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है अभी. 3 कार पार्क्स, एयर कंडीशन लॉबीज. सो DLF ने अगर आप देखोगे ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज किया नहीं है. दिस इज़ वेरी गुड 10 feet डेक. सो दिस इज़ समथिंग जो DLF हमेशा की तरह डिस्कस ज़्यादा नहीं करता है, ना क्लब हाउस का मेंशन है. दिस इज़ व्हाट द ब्रोशर इज़. नाउ व्हेन इट कम्स टू शोभा, अगेन इट्स a 30 acres of a society, but yeah, you can buy this. And by the way, if someone from Shobha is listening to me, this this brochure with the 1% club, and you are invited to be a part of the 1% club, and
दिस इको लग्जरी एंड ऑल दैट व्हाट दे मेंशन, दोनों ही इको लग्जरी होंगी. एंड शोभा कम्युनिटी है क्लास अपार्ट. आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये इन द ब्रोशर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. An actual person who is, let's say they are very elite or top 1% can be put off by this, to be honest with you, because this is, a lot that have been written in the brochure. So, you know, अगर हम इनको प्रोडक्ट वाइज देखेंगे, प्रोडक्ट वाइज इट्स डिसेंट दोनों. बट अगर आप यू वांट टू चेज काइंड ऑफ अ वैलिडेशन आउटसाइड, लाइक व्हाट आई मीन इज, अगर आप validation outside, as in if you want to see, you want to be a part of 1% club and all that, that is something I don't believe in. That's not my mindset. But इन्होंने जिस वे में ब्रोशर पे दिखाया, it's, I think it's a little too much, and the actual 1% would be put off by this. And I believe that's why from past 1 year there is not a lot of sale in this product. So brochure ki marketing is not right according to me. But yeah, that's what it is. They have written a testament to your life's journey, a masterpiece you deserve. Yeah, it can turn out to be a masterpiece, but the way the brochure is, I actually got a little put off by this, the way they have mentioned things and all that. So ये आपका कर्मा लेकलैंड्स का मास्टर प्लान है. दिस इज़ 270 एकर्स. आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द फेज़ 1, दिस इज़ फेज़ 2. ठीक है, आपकी एंट्री गेट 1 से, यहाँ से मेन 84 मीटर रोड से होगी, और सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ से है. सो इट्स अ बिग लैंड पार्सल. And इसमें there are villas as well, there are suites as well, there are cottages as well, and already there is a 9-hole golf course which is also a winning golf course. And इसके आसपास there are more things planned as well. So this is something you can look into the master plan अगर आपको सही लगता है. And इसमें again इसमें एक चीज़ है, I don't know about how it will turn out to be like a community, but if you actually want to use the word eco luxury, तो जैसे DLF has also used the word eco luxury a lot, and DLF Privana का concept was the low AQI. I personally believe अगर हम उस concept के वाइज देखेंगे eco luxury and low AQI, तो Shobha is much better because it's in sector 80. The 270 acres land parcel of Karma Lakeland is a big plus 30 acres of community is not bad. ये आप ये मास्टर प्लान यहाँ पे देख सकते हैं. So दिस इज समथिंग अगेन फ्यूचर डेवलपमेंट 12.6 एकर्स में है. दिस इज 14.8 एकर्स. आपके सिर्फ 5 टावर्स है. एंड दिस इज द वे दे हैव मेंशन्ड द एंट्री एंड ऑल दैट. दिस इज कमर्शियल साइट 1. आपका अराउंड यू कैन से अराउंड 15,000 to 18,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल है ये यहाँ पर. ठीक है, ये आपका नर्सरी स्कूल है. EWS इन्होंने आई थिंक ट्रांसफ़र कर दिया है. So आई एम नॉट श्योर अबाउट EWS, बट या दैट इट इज़ वॉट इट इज़. एंड या एवरीथिंग इज़ मैंशन. देर आर लॉट ऑफ एमिनिटीज़. और आप अगर एमिनिटीज़ वाइज देखेंगे, जस्ट मैं अगर DLF प्रिवाना वेस्ट को देखता हूँ वर्सेस शोभा रानिया, तो ऑफकोर्स इसमें एमिनिटीज़ ज़्यादा हैं. बट अगर मैं टोटल इको सिस्टम देखता हूँ, टोटल इको सिस्टम मीन्स योर साइबर सिटी 2, your Privana full 120 acres of development, it could turn out to be more as well, but that's what it is. And उस हिसाब से देखता हूँ तो Shobha is actually benefiting from DLF Privana. Even though it's a 30-acre society, but Shobha is benefiting from the whole DLF Privana ecosystem. When people are ready to come to 76, 77, तो वो 80 भी जा सकते हैं. If you have seen the master plan of Gurgaon, you can see, that 77 से 70, 80 भी जाना, it's not that tough, and Shobha की location is quite nice. एंड आपको वो नेचर की फील आती है. सो अगेन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आप देखोगे तो शोभा विंस हैट्स ऑन विद द एमिनिटीज़ एंड ऑल दैट व्हाट दे हैव मेंशन. बट अगर आप पूरा इकोसिस्टम देखते हो तो DLF प्रिवाना इज अ बिगर इकोसिस्टम, दैट इज समथिंग दैट पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. सो अगेन डबल हाइट लॉबी एंड एवरीथिंग नेचर एंड ऑल दैट, दोनों का इस वे में सेम कॉन्सेप्ट है. मार्केटिंग भी उस वे में की गई है. आपका क्लब दिखा दिया इन्होंने, G+2 है 75,000 स्क्वायर फीट का. DLF ने क्लब का मेंशन नहीं किया है. DLF चाहे प्रोडक्ट कोई सा भी 2 CR का हो, 3 CR का हो, 4 CR का हो, 7 CR का हो, DLF लाइक टू कीप थिंग्स प्राइवेट. वो बाद में ही डिस्क्लोज करता है. एंड द थिंग अबाउट DLF इज जो बोला है उससे बेटर डिलीवर होता है. तो जैसे मैंने आपको फसाड का बताया, एवरीथिंग दैट हैज़ बिन मैंशनड इन प्रिवाना वेस्ट एज वेल, अगेन दिस 5th and 4th could turn out to be a 75,000 square feet club in 1 acres, and this could turn out to be a good commercial. So DLF Privana West, even though थोड़ी सी density ज़्यादा है, I would say it's a mid density product, but commercial आते ही और club add करते ही,
the total table that I prepared, those things change, you know. So that is something to be aware about. ठीक है, अब ये आपकी सारी चीज़ें हैं, ओलंपिक साइज पूल एंड द लग्जरी एमिनिटीज 7-8 सीआर साइज में तो होंगी यार, अगर वहाँ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी, राइट? एंड या दिस इज़ वॉट इट इज़, कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट यू गाइज नो. सो ब्रोशर एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया है. नाउ लेट्स कम टू द फ्लो प्लान. एक बार मैं आपको बता देता हूँ. द सुपर बिल्टअप एरिया इज 3577 in this DLF's case. Shobha Rania's super built-up area is 3691 and carpet is 2151. DLF Privana's carpet is 2000. Okay, now let's come to the technical analysis जो मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंड यूनिट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर. टोटल लैंड 31.3 एकर्स है. DLF Privana वेस्ट टोटल 14.5 एकर्स है. 12.6 तो मैंशनड ही है और 2 एकर्स आपका क्लब एंड कमर्शियल है, जो मैंने एस्टिमेट लगाया है एंड अजम्पशन बेस्ड है, यू नो. सो अगर आप देखोगे दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट टू बी फेज़ 1 इज़ अराउंड 14.8 एकर्स, यहाँ पे 14.5 एकर्स, तो ऑलमोस्ट साइज सेम निकल के आता है. ठीक है, यूनिट्स आप देखोगे 524, 795, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डेंसिटी में. आपकी 38 to 39 यूनिट्स निकल के आती है इफ़ यू सी द फेज़ 1. एंड फेज़ 2 में भी अगर फेज़ 2 इज़ अराउंड 12.7 एकर्स, फेज़ 2 में भी अगर 5 टावर्स आते हैं तो मैक्सिमम 42, 43, 45 तक जा सकता है, यू नो. तो आप मान सकते हो डेंसिटी इसकी अराउंड 40 यूनिट्स हैं शोभा की. आपकी DLF Privana वेस्ट इज 55, बट अगर आप 12.6 लेते हो तो इट्स 63, जो DLF ने खुद ने ब्रोशर पे मेंशन कर रखा है, राइट? सो नाउ टावर्स हैं आपके, 5 टावर्स हैं, यहाँ पे भी 5 टावर्स हैं. ठीक है, डिफरेंस है यहाँ के जो 5 टावर्स हैं इसमें 3 टावर आपके 2 a कोर है. टावर 1 से 2 and 3. 2 a कोर मतलब आपको मैंने आपको जैसे वाइटलैंड एस्पेन का डिफ्रेंसिएशन किया था कंपैरिजन विद एमथ्रियम गोल्फ हिल्स. यू गाइस नो जब भी 2 a कोर आता है आपको जो फ्लो प्लान मिलता है दैट इज गोइंग टू टर्न आउट मच 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 बेटर इंस्टेड ऑफ अ 4 a कोर. इट्स अ बेसिक थिंग. आपके एक फ्लोर पे 2 यूनिट्स हैं तो इट विल टर्न आउट टू बी मच बेटर. सो G+43 है 3 टावर, G+46 है 3 a कोर आपका, टावर 4, टावर 5. S+41 है. ठीक है, 4 अपार्टमेंट पर फ्लोर आपके. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 2 a कोर, 3 a कोर. fully my one, no shared walls in Shobha. Ceiling height is 10 feet 6 inches. Now I'm not sure exactly, this is what I've known, it could turn out to be 11 feet as well, but जितना मुझे मालूम चला है from the market, this is 10 feet 6 inches. Okay, आपकी DLF की is 11 feet 2 inches. ठीक है, so मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अजम्पशन, आप 10 feet 6 ही मत मान लेना. मैंने स्टैंडर्ड मेजर लिया है, इट कुड बी 11 एज वेल. अपार्टमेंट 3 and 4 BHK, यहाँ पे सिर्फ 4 BHK है एंड पेंट हाउसेज है. ठीक है, प्रिवेसी, नो शेड वॉल्स. प्रिवेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में ओवरलुकिंग नहीं है एक अपार्टमेंट दूसरे से, मतलब आपको ओपन स्पेस मिलेगा. सो आपने अगर मेरे लो राइज वर्सेस हाई राइज वाले ब्लॉग्स नहीं पढ़े हैं तो यू कैन गो एंड रीड देम. इन दोनों में एक्चुअल लग्जरी है कि आपको कोई भी अपार्टमेंट एक दूसरे को दिखेगा नहीं. सो दैट इज समथिंग, ओपन आपको ज़्यादा दिखेगा एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट? आपका शोभा में एक पॉइंट और है, प्रिवेसी के नाम पे शेड वॉल्स नहीं है. तो 2 a कोर यूनिट है तो शेड वॉल है ही नहीं आज बीच में. दैट इज समथिंग, यू नो. आपकी 3 लिफ्ट हैं बीच में, अगर आप उसका लेआउट देखोगे तो दैट इज़ गुड. प्राइसिंग अगेन डिपेंड करता है. लास्ट ईयर इट वॉज 23,000, अभी 24,000 बोला जा रहा है. इट डिपेंड्स ऑन द डीलर्स, यू नो, हाउ मच मार्जिन दे आर टेकिंग एंड ऑल दैट, बट दिस इज द एस्टिमेट जो मैंने 23,000 to 24,000 पर स्क्वायर फीट बताया है. जो आपका टिकट साइज निकल के आता है 7 CR से स्टार्ट हो जाता है. इधर भी आपका 7 CR से स्टार्ट होता है. एंड जब DLF लाया था आपको टोटल ओवरऑल बॉक्स प्राइस पड़ा था उस टाइम पे 19 to 20,000. अब उस चीज़ को भी अराउंड 18 मंथ्स हो चुके हैं जब DLF Privana वेस्ट लॉन्च हुआ था, एंड अब प्राइस इज अराउंड 24,000. यू नो, दैट्स वॉट द थिंग इज. पार्किंग आपकी 3 है फॉर 4 BHK, 2 for 3 BHK, 3 पर यूनिट है. वो मैंशन है ब्रोशर्स पे. बेसमेंट 3 levels. ठीक है, ये आपकी बेसिक डिटेल्स थी. अब आप इसमें अगर मेरे को बोलोगे कि मैं 2 एकर्स नहीं ऐड करता तो देर इज़ अ सिंपल, यू नो, विनर कि आपका 40 यूनिट्स पर एकड़ और 63 यूनिट्स पर एकड़ ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हो गया. बट अगर मैं 2 एकर्स ऐड करता हूँ तो देर इज़ अ बिग डिफरेंस, 55 आ जाता है. 40 and 55 इज स्टिल ओके. मिड डेंसिटी बोल सकते हैं आप इसको. 40 इज़ लो डेंसिटी. ओके, अब ओपन स्पेस पर ग्रीन एरिया आ जाते हैं. आपने अगर ओपन स्पेस पर कैपिटा मेरा वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. आपको डेंसिटी से ज़्यादा बेटर मेजर निकल के आता है ओपन स्पेस पर कैपिटा में. इट्स अ मेजर दैट आई हैव क्रिएटेड अलॉन्ग विद दोस 3 मेजर्स, एंड मैंने उसमें बताया भी है आपको हाउ टू कैलकुलेट फॉर ईच एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें मैंने कैलकुलेशन कर रखी है. आपका ओपन स्पेस इज 85% फेज़ 1,
आपका डीएलएफ में 80% है, ठीक है। आप अगर 14.5 एकर्स लगाते हैं तो दैट वुड बी 70%, क्योंकि आपका कमर्शियल और क्लब आएगा। ओपन स्पेस स्क्वायर फीट में हमने कन्वर्ट किया, ओपन स्पेस पर कैपिटा निकल के आया 262 स्क्वायर फीट पर पर्सन, यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है 160 स्क्वायर फीट पर पर्सन। और आप अगर ये 2 एकर्स नहीं लगाते हैं, 12.6 एकर्स का कैलकुलेट करते हैं तो 140 स्क्वायर फीट। सो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ओपन स्पेस पर कैपिटा नहीं है, एंड फॉर अ टिकट साइज ऑफ 7 CR, 7.5 CR, इट्स नॉट अ वेरी गुड मेजर जो अभी निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने और भी प्रोडक्ट्स में जितने कंपैरिजन किए हैं, मैंने ओपन स्पेस पर कैपिटा निकाला है। आई डोंट बिलीव सो 140 इज़ गुड इनफ, नॉर 159। शोभा का जो निकल के आया है फेज़ 1 का, दिस इज़ 262। और आप अगर इसको आप मानते हैं कि 5 मोर टावर्स आएंगे लेट्स से आपके 12.2 एकर्स में, तो निकल के आएगा 240 स्क्वायर फीट पर पर्सन। और मैंने जैसे आपको बताया आप EWS भी ऐड करेंगे, अभी मैंने EWS कैलकुलेशन नहीं लिया इन दोनों में, तो आप 5 to 7% कम कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस दैट। ग्रीन एरिया 2.3 एकर्स है फेज़ 1 में, आपका ग्रीन इज़ परसेंट पार्ट ऑफ दिस। तो मैंने एक अजम्पशन लिया ये कि DLF ने अगेन हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है एशरा में, एंड DLF डिस्क्लोज भी नहीं करता ये चीज़ें। अगर 18%, अभी तक मैंने जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें देखा है 18% भी हम लगाते हैं ऑफ टोटल लैंड एरिया, तो आपका 2.6 एकर्स निकल के आता है व्हेन इट कम्स टू 14.5। 15% लगाते हैं तो 2.175, 2.2 एकर्स। तो ऑलमोस्ट ग्रीन एरिया सेम ही होगा इन दोनों में, दे वुड नॉट बी अ मैसिव डिफरेंस जो आपको ग्रीन एरिया में बता पाए। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या हुआ, आपका ओपन स्पेस पर कैपिटा इज इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इन दिस सिनेरियो। वाई? बिकॉज 262 स्क्वायर फीट, यहाँ पे 150 to 160 स्क्वायर फीट। सो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है ओपन स्पेस आपका इन शोभा रानिया। सो दैट इज़ वॉट मैटर्स, कि आपको ओपन स्पेस कितना मिल रहा है, ब्रीदेबल स्पेस कितना है। और मैं हमेशा से बोलता हूँ ओपन स्पेस पर कैपिटा निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी एंड डेंसिटी हमने कर लिया है। ये पॉपुलेशन अगर हम 4 पर यूनिट लगाते हैं, ये आपकी है यूनिट्स पर एकड़, ये निकल के आ रहा है 14.6 एकर्स टेकन, ठीक है। आपका पीपल पर एकड़ ये आ गया। डेंसिटी स्टेटस अगेन दिस इज़ अ लो डेंसिटी प्रोडक्ट शोभा रानिया। आपको पता है शोभा सिटी की भी डेंसिटी इज़ अराउंड 40, 39, इसकी भी अराउंड 38, 39, 40। तो शोभा, आई बिलीव लो डेंसिटी इज़ द अल्टीमेट लग्जरी टू बी ऑनेस्ट विथ यू, एंड द ओपन स्पेस पर कैपिटा तो आप देख सकते हैं 262 एंड 160। DLF प्रिवाना वेस्ट इज मिड डेंसिटी, ठीक है। आपका ओपन स्पेस पर कैपिटा अगेन ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लग्जरी बेंचमार्क, मेरे लिए एटलीस्ट 150 होना चाहिए, एंड इट कुड बी 250, 300। तो येस शोभा रानिया मीट करता है, DLF प्रिवाना डजंट मीट दैट। It's borderline 150 है around, so it's a call that you have to take, but it is a part of a bigger ecosystem. Eco luxury, premium urban luxury, eco luxury भी बोला है, and north में तो you guys know eco luxury brochure पे ही mentioned है, तो it's also eco luxury, but then actual eco luxury and air quality and सारी चीज़ें देखेंगे तो this is the winner शोभा रानिया। क्लब हाउस दोनों का सेम हो सकता है, 30,000 बिल्टअप है, G+2 75,000 सुपर बिल्टअप है, इसका भी 75,000 to 80,000 हो सकता है। जो मैंने आपको 1 एकड़ दिखाया, दिस 1 एकड़ कुड बी 42,000 आपका बिल्टअप एरिया, 40,000, एंड उसमें 75,000 to 80,000 क्लब हाउस हो सकता है यहाँ पे। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड आप समझ पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। पार्किंग अगेन मेंशन हो गया है। डिज़ाइन, if you ask me about the design, Shobha Rania is the clear winner right now. What has been shown, what has been disclosed. बाकी DLF can turn out things later on, depends. कमर्शियल आपका 0.7 एकर्स है इन 30 एकर्स, यहाँ आपका अजम्पशन है 1 एकर्स है इन 14.6 एकर्स, ठीक है। तो आप कमर्शियल देख सकते हैं, हो सकता है, एंड दैट कुड टर्न आउट टू बी वेरी वेल फॉर प्रिवाना वेस्ट ओनर्स, दैट कैन टर्न आउट टू बी अ गेम चेंजर अगर आपका कमर्शियल भी है। ग्राउंड कवरेज जो टावर्स है 1.08 एकर्स में है आउट ऑफ 14.8 एकर्स, यहाँ पे 2+ एकर्स है, तो ग्राउंड कवरेज दोनों की अच्छी है आपका। ऑफकोर्स वहाँ पे टावर्स और एरिया कम है एज कम्पेयर टू दिस। ओपन स्पेस कंफर्ट वेरी हाई, मीडियम हाई। अगेन अब हम फ्लो प्लान पे आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ द फ्लो प्लान, एंड पर्सनली आई वुड लाइक टू से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्लो प्लान दैट आई हैव एवर सीन व्हेन इट कम्स टू अ 4 BHK। दिस फॉर मी, दिस स्पेसिफिक फ्लो प्लान, ये आपका टावर जो है B में है, एंड आई थिंक टावर B या टावर C में से है, एंड दिस इज़ टाइप B2। सो दिस फ्लो प्लान टाइप B2, आप प्लीज़ इसी पे देखिए अगर आप लेने जा भी रहे हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस, ठीक है। प्रिवाना का इस अगेन
दिस इज़ अ गुड फ्लो प्लान, बट व्हेन इट कम्स टू फ्लो प्लान देयर इज़ अ क्लियर विनर. अभी हम फ्लो प्लान पे आ रहे हैं. सो हम फ्लो प्लान का टेक्निकल डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं. आपका 357 में 1982 2000 आपका कार्पेट एरिया है डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट में. कार्पेट आपका शोभा में 2150 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2151 मेंशन है, समथिंग लाइक दैट, यू नो. एंड बैल्कनी एरिया इज 421, डीएलएफ में 520. एज यूजुअल आप लोगों को पता है डीएलएफ ऑलवेज ऑलवेज डिलीवर बिगर बैल्कनीज. आप वो कार्पेट थोड़ा सा कम कर देता है, बैल्कनीज बढ़ा देता है, बिकॉज दैट्स द वे दे थिंक एंड आई बिलीव दैट्स द राइट थिंग एज वेल. तो हम फ्लोर प्लान में डिस्कस करेंगे. वॉल्स आपके हैं, अब ये मैंने मेजरमेंट लिया है कि 12% कार्पेट एरिया में मैं ऐड कर रहा हूँ फॉर इनर वॉल्स जो आपके हैं. तो ये निकाल के आपका बिल्टअप बनाया है ये 2829 2738. सो देख सकते हैं बिल्टअप भी ऑलमोस्ट सेम सेम है. सुपर बिल्टअप जो है 3691 है, 3577 है. आपका यहाँ पे कार्पेट जो 150 कम था बिकॉज यहाँ पे आपका 120 स्क्वायर फीट यहाँ पे ज़्यादा है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आपका सुपर बिल्टअप 120 स्क्वायर फीट ज़्यादा है, इसलिए आपका डीएलएफ का प्रिवाना का कार्पेट कम है. प्लस डीएलएफ ने बैल्कनी ज़्यादा दी है इंस्टेड ऑफ शोभा. शोभा ने कार्पेट ज़्यादा दिया है, बैल्कनी थोड़ी कम दी है. ठीक है. सो अभी हम फ्लो प्लान पे आ रहे हैं. लोडिंग अगर आप देखते हो वॉल परसेंट अगर 15% है तो 27.2 है. 27% आप मान सकते हो लोडिंग अगर हम 15% इनर वॉल्स करते हैं कार्पेट पे. अगर आप 12 करते हो तो दिस इज 30%. तो अगेन लोडिंग वाइज दोनों सही है. 27-30% इज अ गुड मेजर. ठीक है. कार्पेट परसेंट ऑफ सुपर आपका यहाँ देख सकते हो शोभा में ज़्यादा है बिकॉज शोभा हमेशा से कार्पेट एरिया ज़्यादा ही देता है, बैल्कनी थोड़ी कम देता है. ओके. फाइनल वर्डिक्ट टेबल. ओपन स्पेस कंफर्ट शोभा को 4 स्टार्स, डीएलएफ 3 स्टार्स. डेंसिटी 4 स्टार्स, DLF 3 stars. Livability 4 stars, 3 stars. Carpet efficiency 4 star, 3 star. Balconies, of course DLF has better balconies, so DLF 4 stars. Amenity scale, bigger ecosystem, so DLF 4 stars. Genuine luxury, yes. Eco luxury, I would say this is the genuine eco luxury and this is urban luxury जो नेचर के क्लोज है, यू नो. सो दैट्स समथिंग आइडियल फॉर एंड यूजर्स. आई डोंट थिंक सो इन्वेस्टर्स वुड बी एंटरिंग दिस वन. जो इन्वेस्टर ले भी रहा है तो आई डोंट नो हाउ मच होल्डिंग पावर दे हैव इफ दे आर एबल टू बाय अ 10 CR टिकट एंड होल्ड इट फॉर 7-8 ईयर्स, बिकॉज 7-8 ईयर्स में इसका टर्न अराउंड होगा. अदरवाइज इफ यू आर एन एंड यूजर यू कैन कनेक्ट विद अस. इट्स गोइंग टू टर्न आउट वेरी वेल, यू नो. और ये भी एंड यूजर्स के लिए है, बट इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी यूनिट्स ली हैं डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट में. फाइनल स्टेटमेंट, येस लो डेंसिटी ग्रीन्स, येस एमिनिटी ड्रिवन. लग्जरी है, दोनों में लग्जरी है. ओपन स्पेस फॉर मी इज़ अ बिगर लग्जरी स्केल एंड शोभा हैट्स ऑफ, यू नो, दैट इट इज़ one of the best open space per capita that I've ever found. Comfort level exceptional high. Balcony lifestyle, you know, good, excellent. Carpet advantage शोभा को. Strong proposition for long term holding. Strong from brand, clubhouse and connectivity. आपका कमर्शियल भी आ सकता है अच्छा सा. तो दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट है. नेचर फर्स्ट है, हाई राइज है, एमिनिटी फर्स्ट फैमिलीज है. आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. अब हम आ जाते हैं आपके फ्लो प्लान कंपैरिजन पे. दीज आर द 2 फ्लो प्लान्स एंड यू नो दिस इज going to turn out to be a very good comparison. So let's discuss why I'm telling you this floor plan for 4 BHK in 2151 carpet area 3691 super built up for me is one of the best floor plans that I've ever seen. मैं आपको बता देता हूँ. नॉर्मली you guys know I'm a fan of low rise floors जिसमें दोनों साइड ओपन होता है. In this floor plan we are getting 2 साइड ओपन. एक बैल्कनी यहाँ पर है, you know, 3 बैल्कनीज यहाँ पर है. सो दिस इज समथिंग दैट इज नेक्स्ट लेवल जो शोभा ने प्रोवाइड किया है. प्लस 2 साइड ओपन हाई राइज में देना पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज 2 टू अ कोर यूनिट में या 3 टू अ कोर में, जो आपको दिख रहा है इस फ्लो प्लान में. सेकेंड पॉइंट, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरे को बेडरूम्स अलग अलग चाहिए, यू नो. अगर आपके 3 रूम्स एक साथ दे दिए हैं दैट इज़ फॉर मी इज़ नॉट अ लग्जरी. वो ज़बरदस्ती एक जगह 3 रूम्स को दे दिया गया है टू सेव स्पेस एंड टू सेव बिल्डर्स, यू नो, मनी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन. सो शोभा में क्या है आपका, इफ़ यू सी इट, दिस इज़ 1 रूम यहाँ पर है. ठीक है. आपकी रूम्स की प्लेसमेंट देखिए, इट्स सो गुड इन दिस फ्लो प्लान दैट आई वाज व्हेन आई लुक्ड एट दिस फ्लो प्लान आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर अ 4 BHK इफ़ यू हैव दैट बजट. एक आपका रूम यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. ठीक है. हॉल के इधर उधर. अगेन देर इज़ अ पैसेज हेयर. आपका 3rd एंड 4th रूम यहाँ पर है. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ आपका एक गेस्ट रूम ये हो गया, आपका मास्टर बेडरूम ये हो गया, आपके पेरेंट्स का एंड आपके किड्स का रूम ये हो गया 3 एंड 4. सो दिस इज समथिंग, यू नो, दैट इज आई वुड से नेक्स्ट लेवल. एंड वो मेरे को 4 BHK में अभी तक तो देखने नहीं मिला. तो आई कैन से फॉर मी दिस इज अ फ्लो प्लान दैट इज, यू कैन से एटलीस्ट 9 out of 10, यू नो.
दिस फ्लो प्लान, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या और बेटर हो सकता था, बट दिस फ्लो प्लान इज नेक्स्ट लेवल। एंड विद दिस प्रिवाना आप देख सकते हो, इसका मैं आपको 2D दिखा देता हूँ एक मिनट। यू कैन सी देर इज यूटिलिटी रूम यहाँ पे, यूटिलिटी बैल्कनी इधर है। तो अगर आप मेरे को बोलोगे टू साइड ओपन है कि नहीं है, नो दिस इज नॉट टू साइड ओपन, आपका एक साइड ओपन है सिर्फ ये बैल्कनीज। सेकेंड यूटिलिटी बैल्कनी है, छोटी सी है 40 स्क्वायर फीट समथिंग, बट देन दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस यू नो इन व्हेन इट कम्स टू वेंटिलेशन। सो अगर आप वेंटिलेशन वाइज देख रहे हैं, 3 balconies on this side, a bigger balcony, a bigger deck on this side, a balcony for a guest room. DLF Privana doesn't even come close when it comes to that floor plan जो मैं आपको बता रहा हूँ. So floor plan wise, hands off, you know, this is a clear winner when it comes to शोभा. अब हम और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. आपका देखिए when it comes to मैं DLF का फ्लोर प्लान, लेट मी ओपन इट अप इन 3D या, क्योंकि देर आर माइन्यूट डिटेल्स, एज यू गैज नो आई ऑलवेज गो इन टू माइन्यूट डिटेल्स. आप देख सकते हैं हॉल का साइज इज 36x15. देर इज़ अ नो फॉयर एरिया यहाँ पे, यू नो फॉयर एरिया आप बोल सकते हो बाहर है, बट देन देर इज़ नो फायर एरिया. एंड जिस तरीके से प्लेसमेंट है यार, देर इज़ अ 10-seater डाइनिंग टेबल, देर इज़ अ 7-seater अरेंजमेंट दैट कैन ईजिली कम, बट देन दिस हॉल इज़ नॉट गुड फॉर मी. वाई? आप इसका मेजरमेंट देखो, एंड आई डोंट थिंक सो DLF हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद दिस फ्लो प्लान, टू बी ऑनेस्ट. यू नो इट इज़ अ फ्लो प्लान जो बना दिया गया है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड फ्लो प्लान फॉर अ 4 BHK. एंड दिस कुड बी could be a very different thing that I'm saying right now. It could be a very contradictory opinion, but then this is what it is. आप देख सकते हैं इट्स अ रेक्टेंगल शेप, 36 फीट आपकी लेंथ है, विथ है आपकी यहाँ पे 15 फीट. 15 फीट में जैसे मैं आपको बताता आया हूँ, हॉल हमेशा आपके घर की हार्ट बीट है. उस 15 फीट में जो आपका विंडो है, ये आप देख सकते हैं, ये दिस विंडो इज़ ओनली 12 फीट. So 12 feet का glass wall in a 4 BHK of around 7 to 8 CR doesn't look nice to me, to be very honest. यहाँ पे शोभा में आप देख सकते हैं फॉर अ डाइनिंग देर इज़ अ डिफरेंट ग्लास वॉल यहाँ पे, दैट इज़ यू कैन से, मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देता हूँ. दिस पार्ट इज़ 15/3, तो 9 फीट अराउंड 8.5 फीट और 9 फीट का ग्लास वॉल यहाँ पर है आपका. जहाँ पे योर लिविंग एरिया इज, यू कैन सी देर इज़ अ 7-seater अरेंजमेंट. आप 8 to 9-seater भी कर सकते हो, यू कैन पुट एनी थिंग, दीज आर वेरी बिग लग्जरी हॉल्स. बट यहाँ पे ग्लास वॉल देखिए आप, दिस ग्लास वॉल, इस रेक्टेंगल का शेप इज 21/18, सो दिस इज 21, सॉरी दिस इज 21, दिस इज 18. ओके, इस 21 में अराउंड 17 to 18 फीट ग्लास वॉल है. सो जहाँ I don't know why this DLF chose to have this floor plan, but ventilation wise, एयर फ्लो वाइज, सनलाइट वाइज, सारी चीज़ों वाइज शोभा इज़ अ क्लियर विनर. आपकी डाइनिंग टेबल के पास अलग से ग्लास वॉल है ऑफ 8 फीट, 17 फीट का बिगर ग्लास वॉल ऑन अनदर ऑपोजिट वॉल, सो दिस इज नेक्स्ट लेवल. DLF प्रिवाना में वन साइड यू आर टेकिंग एंट्री, देर इज़ नो फॉयर एज वेल, यहाँ पे आपका फॉयर एरिया भी है, आप देख सकते हैं. इट्स नॉट डायरेक्टली एंटरिंग टू योर वॉल, तो दैट्स अ मेजर डिफरेंस एज वेल. प्रिवाना में एक तो आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो, प्लस दिस लेट्स से 4-seater सोफा. अरेंजमेंट वाइज भी शोभा रानी इज़ मच बेटर अरेंजमेंट ऑफ योर सोफा फर्नीचर लिविंग रूम. उसके बाद दिस 10-seater डाइनिंग टेबल, यहाँ पे आपकी 8-seater आ सकती है, और यू कैन ऑल्सो पुट अ 10-seater डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वॉन्ट टू ट्रीट दिस हॉल. एंड इस हॉल का साइज इज़ 560, इस हॉल का साइज इज़ अराउंड 600. तो हॉल दोनों मिला के इट्स बिगर, फॉयर और सब मिला के. एंड मोर ओवर इफ़ यू सी द वेंटिलेशन, एयर फ्लो, सनलाइट, सारी चीज़ें इधर बेटर है. ईस्ट एंड वेस्ट की अगर आपने ले लिया, सो दैट इज़ नेक्स्ट लेवल. यहाँ पे आपका एक साइड वॉल है, अंधेरा, नो वेंटिलेशन. दूसरी साइड आपका यहाँ पे देर इज़ 12 फीट ऑनली. तो मैं अगर आपको बोलता हूँ 18 फीट और 17 फीट वर्सेस 12 फीट प्लस एक्स्ट्रा 8 फीट, तो ग्लास वॉल वाइज क्लियर विनर है, देर इज़ नो कंपैरिजन. ठीक है, आपका यहाँ से एंट्री लेके यहाँ पे पाउडर रूम है, देख सकते हैं, छोटा सा आपका 7/5 फीट 6 इंचेस का है, तो यू कैन से अराउंड आपका 38 स्क्वायर फीट का पाउडर रूम है. DLF में भी पाउडर रूम है, एंट्री लेते ही आपका पाउडर रूम का साइज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 5 फीट 5. तो पाउडर रूम भी आपका शोभा में बेटर है. ये 25 स्क्वायर फीट है, यहाँ पे 35 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 10 स्क्वायर फीट ज़्यादा. किचन पे आ जाते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब इसका 2D देखा, आई वॉज शॉक्ड कि हैव दे रियली गिवन अ लाइक अ सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर फॉर अ 7 CR 8 CR हाउस, 8 CR अपार्टमेंट. आई वॉज शॉक्ड, बट देन यू हैव टू adjust it to make it
डबल डोर रेफ्रिजरेटर। तो किचन वाइज आप देखेंगे तो क्लियर विनर इज़ DLF Privana। किचन DLF Privana का बहुत बड़ा है, 18/87 है। दिस इज़ यू कैन से अराउंड 150 स्क्वायर फीट ये आपका जो किचन है। एंड यहाँ पे आराम से मैं आपको 2D भी दिखा देता हूँ। किचन में आपका आराम से डबल डोर रेफ्रिजरेटर आ सकता है आपका यहाँ पे। ये देखिए इस साइड पे आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर आ सकता है। आई डोंट नो शोभा ने ऐसा क्यों दिया है फ्लोर प्लान में। आई डोंट अंडरस्टैंड 7-8 CR में सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। हाउस मेकर्स do love a double door refrigerator, and especially the women who are on elite level. So I don't see that why this has been given. इसका एरिया इज 120 स्क्वायर फीट। आप देख सकते हैं किचन का साइज 9/14 है अराउंड सो 125 स्क्वायर फीट। यहाँ पे इट्स 150 स्क्वायर फीट। सो किचन 25 स्क्वायर फीट बड़ा है आपका। एंड इट्स अ बिग थिंग अगर आप so kitchen wise that definitely deserves with a double door refrigerator. Privana's kitchen is much better. Hall, I don't like this hall. अगर मेरे को कोई ये 5 CR में भी ये hall दे रहा होता I would not take this hall. Shobha ka hall is next level. I haven't seen anything like this, to be honest. And kitchen is smaller, so it's a thing, a call that you have to take. Shobha के और भी plans है, but then this is what it is. That is what we are going to discuss today. ठीक है, I think ये हो गया आपका हॉल कवर हो गया। बेडरूम्स पे आ जाते हैं। आपका जो गेस्ट बेडरूम है दिस इज़ 13 फीट इंटू 12 इंचेस 12 फीट 13 इंटू 12 का है, तो दिस इज़ अराउंड 156 स्क्वायर फीट। आपका जो गेस्ट बेडरूम है यहाँ पे DLF Privana में दिस इज़ अराउंड 160 स्क्वायर फीट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज इज़ अराउंड 14 फीट 6 इंचेस इंटू 13 फीट 6 इंचेस। तो हाँ, आप बोल सकते हैं एटलीस्ट 20 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है आपका। दिस इज़ अ वेरी गुड साइज। इट्स अराउंड 180 स्क्वायर फीट। ये आपका 155 स्क्वायर फीट है। सो 155 स्क्वायर फीट एंड 180 स्क्वायर फीट, 25 स्क्वायर फीट आपका रूम बड़ा है DLF का। सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम इज़ DLF के ऑलमोस्ट सिमिलर 16/12। तो अगेन 192 स्क्वायर फीट आपका। ये दोनों आपके बेडरूम चेक कर लेते हैं। दिस इज 11 फीट 6 इंचेस इंटू 14 फीट 3। तो आप बोल सकते हो 15/11 का रूम है। दिस इज 165 स्क्वायर फीट। दिस इज ऑल्सो रेप्लिका, दोनों रूम सेम है, 160 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे अगेन रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। ये दोनों रूम सेम है, 190 स्क्वायर फीट है। शोभा में आपका 165 स्क्वायर फीट है। दोनों रूम्स आपके 25 स्क्वायर फीट छोटे हैं बेडरूम सेकंड एंड थर्ड से। फर्स्ट बेडरूम वॉज ऑल्सो 25 स्क्वायर फीट छोटा। तो आपके तीनों बेडरूम शोभा में अराउंड 75 स्क्वायर फीट छोटे हैं। एंड बिकॉज उन्होंने हॉल काफ़ी बड़ा दे दिया एंड दैट्स वॉट। एंड आई पर्सनली आई बिलीव थोड़े से 20-25 स्क्वायर फीट छोटे बेडरूम फॉर किड्स रूम एंड पेरेंट्स रूम इज मच बेटर देन हैविंग अ स्मॉल हॉल दैट वी हैव इन Privana लाइक दिस। सो DLF ने ये दोनों रूम बड़े दिए हैं, तीसरा भी गेस्ट रूम बड़ा दिया है। आपके 75 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है तीनों रूम के साइज़ में। इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस बट या इट्स अ डिफरेंस। तो अगर आपको बड़े रूम चाहिए, यू आर ओके विद दिस काइंड ऑफ अ हॉल, Privana इज़ बेटर। बट फॉर मी शोभा इज़ नेक्स्ट लेवल जो हॉल मिला है यहाँ पे आपको। प्लस देर इज़ अ बार एरिया एज वेल, और यू कैन मेक इट अ पूजा रूम। सो देर इज़ अ पूजा रूम एरिया एज वेल। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी गुड। आपका मास्टर बेडरूम चेक कर लेते हैं। 14/15 विद अ ड्रेसर ऑफ अराउंड 40 स्क्वायर फीट। तो 14/15 इज़ अराउंड यू कैन से आपका 210 स्क्वायर फीट प्लस 250 स्क्वायर फीट का मास्टर बेडरूम है। प्लस यहाँ पे देर इज़ अ लॉबी एरिया एज वेल। अगर आप देख सकते हैं, इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, मैं आपको 2D में दिखा देता हूँ। ये देखिए देर इज़ अ लॉबी। दिस लॉबी इज़ ऑफ अराउंड 60 स्क्वायर फीट। आप इसको स्टडी रूम भी बना सकते हैं, या आप इसको यू कैन put it up as anything of a professional area or a service area, whatever you want to, but this is a very good feature जो मास्टर बेडरूम में मिला है। तो आप इस मास्टर बेडरूम का साइज देखोगे 210 प्लस 240 स्क्वायर फीट प्लस 60, तो दिस इज अराउंड 300 स्क्वायर फीट का आपको कार्पेट एरिया मिल रहा है इन द मास्टर बेडरूम इटसेल्फ, विच इज़ अ वेरी लग्जरी मास्टर बेडरूम। शोभा में हम चेक कर लेते हैं। आपका जो मास्टर बेडरूम का साइज है 16 फीट 3 इंटू 13। तो आप बोल सकते हो अराउंड 17/13 का रूम है ये, जिसमें आपका साइज़ निकल के आता है अराउंड 210 to 220 स्क्वायर फीट। ठीक है, उसमें आपका जो ड्रेसर एरिया है वॉक इन वार्डरोब इज 10 फीट, तो 60 स्क्वायर फीट ये है और 210 स्क्वायर फीट ये है।
सो अगेन दिस इज समथिंग योर कॉल, ये दोनों मिला के दिस इज 270, दिस इज 300, तो थोड़ा बड़ा मास्टर बेडरूम है। अगेन वही 25 to 30 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया ज़्यादा है आपका मास्टर बेडरूम सारे बेडरूम्स मिला के एज कम्पेयर टू शोभा दिस प्लान। बट शोभा का जो हॉल और डाइनिंग एरिया है आप वो मिलाएंगे तो दैट इज समथिंग 100+ स्क्वायर फीट वहाँ आ जाता है, दैट्स द बिगर डिफरेंस। अब हम बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। वॉशरूम्स का साइज़ आपका 5 फीट 7 इंचेस इंटू 8 फीट 10 इंचेस, 5 फीट 3 इंचेस इंटू 9 फीट 10 इंचेस, दिस इज दैट्स नॉट द, दिस इज 9 फीट इंटू 10 इंचेस। तो आप देख सकते हो शोभा के जो वॉशरूम्स हैं दे आर ऑलमोस्ट 55 to 60 स्क्वायर फीट। डीएलएफ के जो वॉशरूम्स है, डीएलएफ के वॉशरूम्स छोटे हैं, 5 फीट 6 इंचेस इंटू 8 फीट 6 इंचेस, इट्स अ स्टैंडर्ड साइज, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल बट इट्स अ स्टैंडर्ड साइज। तो आप इसका एरिया निकालते हैं तो इसका आता है 45 स्क्वायर फीट इन तीनों वॉशरूम्स का, गेस्ट प्लस 2 बेडरूम्स। यहाँ पे आपका जो एरिया है दिस इज अराउंड 55 स्क्वायर फीट। तो आपके वॉशरूम्स मिला के 30 स्क्वायर फीट वॉशरूम्स बड़े हैं इन शोभा अरानिया, ठीक है। आपका टॉयलेट एरिया, द मास्टर वॉशरूम इज अराउंड 8 फीट 6 इंचेस इंटू 7 फीट 3 इंचेस, दिस इज अराउंड यू कैन से 65 स्क्वायर फीट का मास्टर वॉशरूम है एंड इट्स अ गुड साइज मास्टर वॉशरूम। शोभा का चेक कर लेते हैं हम कितना है मास्टर वॉशरूम। It's around, oh, this is actually a bigger, more bigger than that. So 11 फीट 4 इंचेस इंटू 6 फीट आपका आराम से बाटअप आ सकता है, यहाँ पे भी आराम से बाटअप आ सकता है। सो अगर आप देखोगे इसको, दिस इज़ अराउंड 70 स्क्वायर फीट मास्टर वॉशरूम, यहाँ पे आपका 65 स्क्वायर फीट। तो शोभा के वॉशरूम्स मिला के 35 स्क्वायर फीट बड़े हैं, आपका डीएलएफ के बेडरूम्स मिला के 100 स्क्वायर फीट बड़े थे एंड हॉल मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स चेक द यूटिलिटी। यूटिलिटी का साइज इज़ वेरी गुड, दिस कैन टर्न आउट टू बी एन ऑफिस स्पेस एज वेल if you don't want to use as a service room. So this utility is around 100 square feet, very good. And utility washroom is also of a very good size. You can see this is around 7 into 5, तो 35 स्क्वायर फीट का सर्वेंट वॉशरूम है, 100 स्क्वायर फीट का रूम है आपका शोभा में। दिस इज़ ओके, दिस इज़ ऑल्सो डिसेंट, इट्स अराउंड 88 स्क्वायर फीट, वहाँ आपको 102 स्क्वायर फीट था यूटिलिटी रूम, यहाँ पे सर्वेंट रूम बोला गया है, ठीक है। आपका जो वॉशरूम है, वॉशरूम इज़ अराउंड सेम साइज 35 स्क्वायर फीट। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं। जो एरिया का मेन डिफरेंस है दैट इज़ इन योर कार्पेट एरिया हेयर वेयर दे हैव प्रोवाइडेड अ सेपरेट पूजा रूम, दिस इज़ 9/6, तो 55 स्क्वायर फीट ये है, प्लस आपका हॉल इज़ 100 स्क्वायर फीट बिगर, प्लस देर इज़ अ कॉरिडोर। फॉर मी इन अ 4 BHK 2 बेडरूम्स अलग होना, गेस्ट एंड मास्टर, एंड देन 2 बेडरूम्स टुगेदर इज़ द परफेक्ट प्लान। यहाँ पे आपके डीएलएफ ने क्या किया है, एक गेस्ट रूम अलग है, 3 रूम साथ में है। एंड हाँ, ऑफकोर्स डीएलएफ ने ये चीज़ अच्छी करी है कि दिस, आपको मैं 2D में दिखाता हूँ, दिस लॉबी एरिया हैज़ बिन गिवन फॉर द मास्टर बेडरूम, बट स्टिल 3 रूम साथ में है यहाँ पे, एंड दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ अ चेंज। अगर आप मुझसे पूछोगे चारों रूम्स का थोड़ा सा साइज़ 100 स्क्वायर फीट हटा दूँ मैं, अगर कार्पेट एरिया, बेडरूम्स की पोजिशनिंग एंड द वे हर एक बेडरूम में बैल्कनी है, जैसे आपको इसमें बैल्कनीज पे आ जाता हूँ मैं, आपको मास्टर बेडरूम के लिए बैल्कनी सेपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि सेकंड बेडरूम से लिंक्ड है। शोभा में यहाँ पे आपको सेम चीज़ है, यहाँ पे भी देखिए आपको सेपरेशन कराना पड़ेगा, मेन बैल्कनी से लिंक्ड है मास्टर बेडरूम में। अपनी गेस्ट रूम की अलग बैल्कनी है और 2 रूम्स की अलग बैल्कनी है, यहाँ पे आपके दोनों रूम्स की एक बैल्कनी है। सो अगेन बैल्कनीज वाइज डीएलएफ का डेक इज़ 10 फीट, यहाँ पे आपका 8 फीट का डेक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 फीट 5 इंचेस, ऑलमोस्ट 8 फीट का डेक है, 31 इंटू दिस। एंड डीएलएफ में आपका 10 फीट का डेक है, 9 फीट 9 इंचेस, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। डेक एरिया अगर आप देख रहे हैं, फ्लोर प्लान ओवरऑल देख रहे हैं, एंड सीइंग द रूम्स, ऑफ कोर्स यू वुड हैव टू टेक अ कॉल डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल नीड्स। बट अगर मैं आपको बोलूँगा विच वन इज़ द बेटर फॉर मी एज अ फ्लोर प्लान, शोभा अरानिया इज़ अ क्लियर विनर, इट्स अ क्लियर विनर, एंड आई डोंट थिंक सो 4 BHK में इससे बेटर प्लान बन सकता है फ्लोर प्लान। हाँ, इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, मास्टर बेडरूम के साथ ये जो मेन कॉमन बैल्कनी शेयर हो रही है, दिस इज समथिंग दैट इज़ नॉट गुड। डीएलएफ में आपकी ये चीज़ बेटर है, मास्टर बेडरूम के साथ अपनी बैल्कनी है, आपको सेकंड बेडरूम के साथ प्रिवेसी सेपरेशन कराना पड़ेगा। सो दैट्स जस्ट द थिंग। ओवरऑल शोभा इज़ द क्लियर विनर। फ्लोर प्लान का कार्पेट एरिया भी आपका अराउंड 120 स्क्वायर फीट ज़्यादा है इसमें, ठीक है। दिस प्लस दिस थिंग ऑफ मास्टर बेडरूम वे देर इज़ दिस लॉबी, यू कैन से दिस इज अराउंड 60 to 70 स्क्वायर फीट जस्ट लाइक दिस, ठीक है। आप यहाँ से आ रहे हैं, बट दिस गिव्स अ मच बेटर फीलिंग एज कम्पेयर टू दिस लॉबी एंड कॉरिडोर जो आपका डीएलएफ में है। सो 4 to a core 2 to a core यही मैटर करता है, दैट्स वाई ऐसे दोनों साइड ओपन आपका अपार्टमेंट घर लेआउट जो है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू विन। डीएलएफ में आपका एक साइड ही है, यूटिलिटी बैल्कनी है बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प आउट।
यहाँ पे आपका 2 डायरेक्शन में है, ठीक है? प्लस आपका यू कैन सी द यूटिलिटी balcony is also there. तो there are total 6 balconies. There is 3 balconies. In one direction, you can say a second direction as well, but this is much better. Thank you. Let me know what other comparison do you want. You can comment as well. What do you want as comparison? And let us know what do you think about this video. Thank you. Take care. Bye.